Okay, now start some more problems from miscellaneous exercise. The first I have taken, it is question number 6. Prove that tan inverse square root of x is equal to half cos, this is half cos 1 minus x, cos inverse 1 minus x. See, look at this, cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. This is the problem. So let us try to solve this. This one, what I will do, let us take LHS. If I go for its LHS, this is tan inverse. I will write let tan inverse square root of x is equal to theta. This will give me tan theta is equal to square root of x. And what is x? X is equal to tan square theta. This x is equal to tan square theta I will use for RHS. LHS is theta, so I will use this tan square theta for RHS. Let me write RHS. What is this? This is half cos inverse. I said write 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. You know that this is half of cos inverse cos 2 theta. This is the formula of cos 2 theta. Now look at this, whether this 2 theta will be theta cos inverse cos 2 theta, I can write 2 theta or not. For this, go for this limit. I am given 0 to what is x? Tan square theta. Tan square theta less than 1. Then what should be theta? Theta should be 0 to theta should be less than pi by 4. Then what should be 2 theta? अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 0 से 2 theta will be less than equal to pi half. So it means यहाँ पर pi half you can write. It means I am within the limit. So I can write half into 2 theta. 2 cancels. This is theta. Look here. RHS is theta and LHS is theta. So this is proved. Let's move for next question. The next question is, see, look at this. Prove that, very good question. Prove that tan inverse cos root 1 plus sin x plus square root of 1 minus sin x upon square root of 1 plus sin x. There are so many methods. See, you can rationalize this. आप इसको डिनोमिनेटर से रेशनलाइज भी कर सकते हैं. कई बार बच्चे इसको रेशनलाइज करते हैं, देन ऑल्सो दे गेट वेरी गुड रिजल्ट्स. दैट मेथड इज ऑल्सो देयर. और आई कैन राइट दिस since I know that, what do I know? I know that 1 plus minus sin x. This is always a perfect square. किसका perfect square है? ये cos x हाफ प्लस माइनस, दोनों प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, साइन एक्स हाफ होल स्क्वायर. अब इसके बाहर स्क्वायर रूट है, तो ये बाहर से स्क्वायर रूट है, ऐसे स्क्वायर रूट है आपके पास दोनों में, तो इसमें स्क्वायर रूट आप लगाएंगे. ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉस एक्स हाफ प्लस माइनस साइन एक्स हाफ होल स्क्वायर का ये बाहर आ जाएगा. अब सी, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ. सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज b माइनस ए होल स्क्वायर. नाउ व्हाट टू राइट? कॉस एक्स हाफ माइनस साइन एक्स हाफ होल स्क्वायर. दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइन एक्स हाफ माइनस कॉस एक्स हाफ होल स्क्वायर. सो व्हाट टू राइट? अब आपको लिखना क्या चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप अगर ये लिखोगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, दोनों में आंसर चेंज आएगा. बट इफ़ यू सी द लिमिट, अगर हम लिमिट देखते हैं, लिमिट अगर 0 से पाई बाई 4 होगी, व्हाट आई सेड इफ़ द लिमिट इज 0 टू पाई बाई 4, लिमिट इज 0 टू पाई बाई 4, देन आई विल राइट कॉस एक्स हाफ माइनस साइन एक्स हाफ होल स्क्वायर. द रीज़न इज क्योंकि कॉस एक्स हाफ इज ग्रेटर देन साइन एक्स हाफ फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4. 0 से पाई बाई 4 में इसको हम क्या लिखने वाले हैं? इसको हम लिखने वाले हैं कॉस एक्स हाफ, इसे हम लिखने वाले हैं
कॉस एक्स हाफ माइनस साइन एक्स हाफ का होल स्क्वायर। मैंने आपको रीजन बता दिया है, ये 0 से π/4 है इसलिए लिख रहे हैं। अगर ये क्या होता, अगर ये π/4 से पाई हाफ होता तो हम इसको साइन एक्स हाफ माइनस कॉस एक्स हाफ होल स्क्वायर लिखते, क्योंकि 0 से π/4 में कॉस एक्स हाफ इज ग्रेटर, cos will be greater, cos x is greater than sin x when x is from 0 to π/4. That's why I am going to write this one. मैं क्या लिखूँगी, मैं ये लिखूँगी sin x हाफ माइनस cos x हाफ वाला लिखूँगी, इसको मैं नहीं लिखूँगी। Let's solve this. अब इसे सॉल्व करते हैं। I said what I said, मैंने आपको बोला कि this will become square root of 1 plus minus sin x, 1 plus minus sin x will be, आप क्या लिखोगे, cos x हाफ प्लस माइनस sin x हाफ होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम cos x हाफ प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सो द आंसर विल बी cos इनवर्स। अब हमारा हो जाएगा cos इनवर्स, देखो 1 प्लस साइन एक्स इज cos x हाफ, ये cos नहीं है बच्चों, cot है, ये इसे कॉट कर लेना। cos एक्स हाफ माइनस प्लस है तो ये प्लस है, प्लस साइन एक्स हाफ, और बीच में प्लस cos एक्स हाफ माइनस साइन एक्स हाफ होल अपॉन, आप इसे यहाँ से लिख लो तो आप क्या लिखोगे, cos एक्स हाफ प्लस साइन एक्स हाफ, cos एक्स हाफ प्लस साइन एक्स हाफ, और यहाँ माइनस ब्रैकेट में लगा देना, तो ये cos एक्स हाफ माइनस साइन एक्स। दिस वे यू विल गेट कॉट इनवर्स है ये, ऑलवेज रिमेंबर, वहाँ गलत लिखा हुआ कॉट इनवर्स। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 cot एक्स हाफ, क्योंकि 2 cos एक्स हाफ अपॉन साइन एक्स हाफ बचेगा। सो दिस विल बी जस्ट 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 cos एक्स हाफ अपॉन 2 साइन एक्स हाफ, यू विल गेट द आंसर, दिस इज एक्स हाफ। ये आंसर एक्स हाफ आया इस इंटरवल में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4। अब पहले आंसर को देख लो, आंसर में यहाँ पे 9/4 लिखा है, लेट मी टेक 9/4 कॉमन। सबसे अच्छी आंसर की अप्रोच यही है, तो ये पाई हाफ माइनस कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/3, पाई हाफ माइनस साइन इनवर्स एक्स 9/4, दिस इज कॉस इनवर्स 1/3। अब इस कॉस इनवर्स को आप किस में कन्वर्ट कर दो, साइन में कन्वर्ट कर दो, तो ये साइन कितना होगा, परपेंडिकुलर साइन इनवर्स आप कितना लिखते हैं, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, बेस इज 1, हाइपोटेनस इज 3, तो व्हाट विल बी इट्स परपेंडिकुलर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2√2, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 3, तो यू गॉट द आंसर। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, बट यहाँ पर ये tan इनवर्स है, दिस इज 2 tan इनवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट इट, tan इनवर्स, ये 2 tan इनवर्स है। अब इसे क्या करने वाले हैं हम, 2 tan इनवर्स को आई विल राइट tan इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स cos x, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसे कुछ नहीं कर सकते हैं, 2 cosec x को ज़्यादा से ज़्यादा आई कैन राइट sin x के टर्म्स में, बट आई एम नॉट राइटिंग tan इनवर्स cos x प्लस cos x, तो ये 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। नाउ tan इनवर्स को आप दोनों साइड है तो हटा सकते हैं, दिस इज 2 cos x अपॉन ये साइन स्क्वायर x है इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन एक्स, cosec x को मैंने साइन एक्स लिख दिया, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट cos x अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इज cot x is 1, x cot x is equal to 1, then x is equal to π/4, this is the answer, x is equal to π/4 will be the answer, you can write it. The next question, let's move for next.
Again, very good question, though we had already discussed this kind of question. सॉल्व हैं ये सारे, सॉल्व हैं ये, दिस इज नॉट टू प्रूफ. 14th क्वेश्चन आप देखोगे, ये सॉल्व दिस क्वेश्चन है. इसमें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. यू कैन सी इट इन द बुक. अब ये जो LHS है, व्हाट इज LHS? डू यू नो LHS इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x. This is equal to half tan inverse x. So tan inverse 1 will be equal to half tan inverse x plus tan inverse x. This will become 3/2. Add करोगे 3/2 tan inverse x is equal to how much? pi/4. tan inverse 1 को लिख दिया pi/4. Then 2 pi 3 into 4 is equal to tan inverse x. This will give me pi/6. This is pi/6. Then x is equal to 1 upon square root of 3. This is the value of x. x is equal to 1 upon square root of 3. थोड़ा ठीक ढंग से लिख लेना इसको. x is equal to how much? x is equal to, you can write 1 upon square root of 3, क्योंकि tan inverse x is equal to कितना आ गया? tan इनवर्स x इज इक्वल टू pi/6 30 डिग्री होता है. तो दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू हाउ मच? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस. लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट. वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा. अगेन सॉल्व फॉर x, क्योंकि ये सॉल्व फॉर x ही थे. सॉल्व फॉर x यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब ये फिर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. देखो, लेट मी सॉल्व इट. व्हाट आई विल डू, मैं इसमें लिखूँगी साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू pi/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स. थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है ये. 2 साइन इनवर्स देन 1 माइनस एक्स. दिस विल गिव मी 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन pi/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स. साइन pi/2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो दिस विल बिकम cos 2 साइन इनवर्स एक्स. अब आसान है. 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू cos 2. नाउ लेट साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं. लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा. दिस विल गिव मी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा. नाउ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा मीन्स 1 माइनस साइन थीटा will be cos 2 theta. This is 1 minus 2 sin square theta. And ये 1 और 1 कैंसिल हो गया. इस 2 को इधर लाइए. 2 sin square theta minus sin theta. This is 1. तो this will give me either, this is 0. Either sin theta is equal to 0 or sin theta is equal to 1/2. तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू इसमें 1/2 नहीं 0 होती है. सेटिस्फाई करा लेना, इसको वेरीफाई करा लेना. सो दिस इज ऑल अबाउट द NCERT प्रॉब्लम्स एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ लास्ट डेज क्वेश्चन पेपर.